Hello everyone, good morning. Myself Abhijit Prakash Jha, and in today's video, we will cover cell, the fundamental unit of life. Before starting this video, let's go through the syllabus. इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, we will cover the introduction part. That means what is cell. Along with that, we will also cover some of the important discoveries in the field of cytology. Then we will try to cover different types of cell. On the basis of number, it is of two types, unicellular and multicellular. On the basis of nucleus, again it is of two types, that is prokaryotic and eukaryotic. And depending on the domains of life, it is of five types: bacterial cell, protozoal cell, fungal cell, animal cell and plant cell. इस टॉपिक के बाद we will dwell deeper into the concept of cell theory. Cell theory was first of all proposed by Selden and Swan. तो हम इस टॉपिक को भी अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. Then हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी that shape of cell it keeps on varying according to the function they perform. That means कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं and they perform various function, और उनके फंक्शन से ही उनका शेप डिटरमाइन होता है. After that, we will go through cell composition. In cell composition, we will cover cell wall, along with that plasma membrane. Then, followed by that, we will cover nucleus, also known as brain of the cell. Then, we cover cytoplasm and cell organelles. Cell organelles हम लोग काफी सारे पढ़ेंगे. Membrane bounded cell organelles, membrane less cell organelle, हम ये सब इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. टॉपिक थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, so stay tuned with me so that you can get ample information about this topic. So friends, let me again welcome one and all in my YouTube channel, The Science Flix. और इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 9th और क्लास 11th दोनों स्टूडेंट को टारगेट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं. So friend, stay tuned. Without any further ado, let's start our video. The first topic is what is cell. तो हम लोग शुरू करेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से, जो हमारे सिलेबस का सबसे पहला पार्ट था. Okay friends, so let's start with definition of cell. So first of all, cell is known as fundamental functional and structural unit. तो इसमें तीन वर्ड्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल, ऑल्सो नॉन एज बेसिक, फॉलोड बाय फंक्शनल एंड थर्ड वर्ड इज स्ट्रक्चरल. तो इन तीनों वर्ड्स को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स वहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है. इन द सेम मैनर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. साथ ही साथ इट इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल यूनिट. दैट मीन्स कि वट एवर फंक्शन एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स, it is basically the function performed by the cells, and along with that it also help in the formation of the body plan. किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का बॉडी प्लान जो होता है उसे बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है. That's why cell is known as fundamental, functional and structural unit of life. Now, second thing is a cell is capable of independent existence. इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल खुद में ऑटोनोमस होता है. दैट मीन्स कि वो अपने सारे फंक्शंस को खुद ही कंट्रोल कर सकता है, खुद ही उसे वो चैनलाइज कर सकता है. एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स थ्रू द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस से पास ऑन होता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे you can cite example of any unicellular organism. For example, bacteria आप जानते हैं कैसा होता है, unicellular होता है. Along with that, amoeba is also unicellular organism.
नाउ यहाँ पर पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उस सेल की बनी होती है। दैट मीन्स कि दैट सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी फ्रेंड। देन रिमेंबर दिस पॉइंट, all life forms all life forms starts from a single cell। आप चाहे किसी प्लांट की बात करें या फिर आप किसी एनिमल की बात करें, वेन एवर यू टॉक अबाउट एन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि हर एक लाइफ फॉर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से ही शुरू होता है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ जो होगी वो यूनिसेलुलर सेल से स्टार्ट होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना है, इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वी हैव जायगोट। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में एक प्लांट का ऑरिजिन जो होता है वो जायगोट से ही होता है। एंड सेम अप्लाई इन द केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स की भी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल जायगोट से होती है। तो कीप दिस 3 पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल खुद में सेल्फ सफिशिएंट होता है, ऑटोनोमस होता है। एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसी पॉइंट्स के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक के सेकेंड फेज की तरफ। दैट फेज इज इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है कि इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी देयर आर नंबर ऑफ साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, नॉन एज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ईयर इज 1665। डिस्कवर्ड सेल। अब यहां पर ध्यान रखना है, द सेल वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुले। ये जो सेल वर्ड होता है ये कहां से आता है? ये सेलुले से आता है। सेलुले इज ए लैटिन वर्ड एंड दिस सेलुले इट स्टैंड्स फॉर लिटिल कंपार्टमेंट्स। लिटिल कंपार्टमेंट, सेलुले का मतलब क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट। एंड लेटर ऑन दिस सेलुले ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेल। तो अभी जो हम मॉडर्न डे में सेल वर्ड जो यूज करते हैं, बेसिकली दिस सेल वर्ड it has been derived from cellulae and cellulae is of Latin origin and it stands for little compartments. Now third thing, subject material. रॉबर्ट हुक ने किस सेल पर काम किया था? तो आंसर आपका होता है कॉर्क प्लांट। इन्होंने कॉर्क प्लांट के सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। एंड साइंटिफिक नेम ऑफ कॉर्क प्लांट इज क्वेरकस सुबर। Keep this name in mind. Scientific names are of utmost importance in biology. तो याद रखना है कि कॉर्क प्लांट का साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्वेरकस सुबर होता है। एंड आपके रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क प्लांट में ही सेल को डिस्कवर किया था। एंड इफ समवन आस्क्ड यू फ्रॉम वेयर दिस सेल वर्ड केम, तो आंसर होगा आपका सेलुले। सेलुले इज ऑफ लैटिन ऑरिजिन एंड इट स्टैंड्स फॉर लिटिल कंपार्टमेंट। लेटर ऑन he also wrote a book and name of that book is Robert Hooke also written a book and name of the book is Micrographia. So author of this book is Robert Hooke. तो इनके कंट्रीब्यूशंस को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने दूसरे साइंटिस्ट की तरफ। Second scientist is Antony van Leeuwenhoek। नाम थोड़ा बड़ा है, बायोलॉजी के फील्ड में आपके काफी सारे नाम होते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट वी हैव टू कीप दिस नेम्स इन माइंड। सो यहाँ
याद रखना है फ्रेंड्स, एंटोनी वैन लीवेनहॉक इन 1671 discovered फर्स्ट लिविंग सेल। तो सबसे पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी। He also studied ह्यूमन स्पर्म, इन्होंने ह्यूमन स्पर्म के सेल को भी स्टडी किया था। Along with that, he also studied pool water or pond water which contained amoeba, and along with that he also studied RBC, red blood corpuscle, also known as red blood cell और erythrocytes। तो इन सारे सेल्स की स्टडी करने वाले थे आपके एंटोनी वैन लीवेनहॉक। सो नाउ यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, first cell was discovered by Robert Hooke, but that cell was dead in nature. First living cell was discovered by Anthony van Leeuwenhoek। तो यहां पर याद रखना है फ्रेंड्स। यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड साइंटिस्ट, एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन, ईयर 1831। ध्यान रखना है, इनका भी नाम आपका रॉबर्ट ब्राउन है। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन क्या है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन विच प्लांट? इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड एक तरह की फ्लावरिंग प्लांट होती हैं, इनके फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल होते हैं, और इन्हीं फ्लावर्स, इन्हीं प्लांट के रूट टिप सेल में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर। नेक्स्ट पर्सन इज परकिंजे। डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज करने वाले कौन थे? परकिंजे। अब तक हम लोगों ने 4 साइंटिस्ट पढ़ा है, एंड लास्ट साइंटिस्ट नेम इज हक्सले, विच इज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। एंड हक्सले given a statement known as protoplasm is the physical basis of life। तो इस स्टेटमेंट को देने वाले थे हक्सले। लेट मी नाउ जस्ट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन a very simple and plain manner। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स ए मीडियम। इन केस ऑफ बायोलॉजी, सेल इज ए काइंड ऑफ मीडियम। इट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड्स दैट मीडियम where all sort of living reactions takes place. That's why Huxley stated that protoplasm is the physical basis of life। तो यहां तक दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट टॉपिक इज सेल थ्योरी। तो फ्रेंड्स, इसको सेल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकैप्सुलेट हमने पहले क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। It is structural and functional unit of life. Along with that, all life forms originate from a single cell। हर एक लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। एंड थर्ड वन, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हर एक सेल खुद में ऑटोनोमस होता है, एंड दे कैन कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिविंग रिएक्शंस। कुछ हमने डिस्कवरी पढ़ा था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल। इस सेल वर्ड की ऑरिजिन कहां से हुई है? सेलुले से हुई है। Along with that, Anthony van Leeuwenhoek discovered first living cell। साथ ही साथ ह्यूमन स्पर्म को स्टडी किया है, ह्यूमन आरबीसी को भी स्टडी किया है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस,
Purkinje discovered protoplasm, and Huxley gave an statement known as protoplasm is the physical basis of life. तो ये हमारा रिकैप्चुलेशन हो गया. Let's move on towards cell theory. So first of all, this cell theory was proposed by Selden and Swan. दो साइंटिस्ट हैं, सेल्डन एंड स्वान. 1838, 39. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्डन एंड स्वान प्रपोज सेल थ्योरी. इन्होंने ही सेल थ्योरी के प्रपोजिशन को पास ऑन किया था और जिसे हम आज भी स्टडी करते हैं. यहां पर देखना है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी होता क्या है एंड व्हाट इट एक्चुअली इन्फर्स, ये किस चीज को रेफर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिनेशन इज द फर्स्ट पार्ट. सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. So this is the very first point of cell theory, जो हमने पहले कवर भी किया था कि सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे छोटा यूनिट होता है. साथ ही साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी. फंक्शन, फंक्शन performed by an organism, performed by an organism is the sum total of functions Sorry for the break. Let me just explain the second point. Function performed by an organism is the sum total of function performed by the organism. Performed by the, my mistake. Performed by the cell. So this is the second point of cell theory. हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन एक्चुअली हमारे सेल के द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन. मेरे चेस्ट के सेल, देन ट्रैकियल सेल, देन cells of tongue, all these cells play together, comes together, then they perform the function of speaking. Let's move on to the third function, third point of the cell theory. Cell is the smallest structural and functional unit of life. जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, this is the same point, smallest structural and functional unit of life. Functional unit of life. And let's come to the last point. All cells have nucleus. All cells have nucleus. So friends, you have to keep 4 points in mind. Cell theory कोई भी आपसे पूछता है, आप simply बोलें cell theory was proposed by Selden and Swan. स्टेटमेंट कोई आपसे पूछता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे बेसिक यूनिट हमारे लाइफ की सेल होती है. फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल्स. हम जो भी काम करते हैं वो एक्चुअली हमारे सेल के द्वारा किया जाता है. थर्ड पॉइंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड लास्ट वन, ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस. वी डू हैव सम एक्सेप्शंस. अगर कोई एक्सेप्शन आपसे पूछता है कि किस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, तो आंसर होता है आपका आरबीसी. मैच्योर आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. तो अब आपको सेल थ्योरी को एक्सप्लेन
अब आपको सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं इस थ्योरी के साथ साथ एक आपकी बहुत ही मेजर इशू थी कि इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया था कि हाउ न्यू सेल्स कम। सो देयर वाज एन एनिग्मा, देयर वाज ए क्वेश्चन लेफ्ट बिहाइंड इन दिस थ्योरी, एंड दैट क्वेश्चन वाज हाउ न्यू सेल्स ओरिजिनेट, हाउ न्यू सेल्स ओरिजिनेट। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सेल थ्योरी में नहीं दे दिया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर लेटर ऑन आपके एक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रॉबर्ट वर्चो, ईयर 1856। रॉबर्ट वर्चो ने एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट कॉन्सेप्ट इज omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula. This concept was propounded by Robert Virchow in 1856, and what this Latin statement actually infers, ये actually में बोलता क्या है? It states each new cell originate from pre-existing cells। एक नए सेल की जन्म अपने पिछले सेल से होती है। दैट मीन्स कि मदर सेल गिव्स राइज टू डॉटर सेल्स बाय सेल डिवीजन, या फिर रिप्रोडक्शन के हेल्प से वो आपके बर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे सपोज कर सकते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एन अमीबा। दिस इज ए मदर अमीबा सेल। First of all, it will undergo division and it will form two daughter amoeba। यहाँ पर कितने डॉटर अमीबा बनेंगे? 2 डॉटर अमीबा आपकी बन जाती है। Now these 2 daughter cell, they came from through this mother cell। Again these 2 daughter cell will develop, they mature, and again they will undergo division, and again they will form 4 amoeba। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो अगली जनरेशन होती है वो हमेशा किससे ओरिजिनेट होती है? पिछले जनरेशन से ओरिजिनेट होती है। तो अगर हम इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं हमारे सेल थ्योरी में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, देन दिस थ्योरी इज नोन एज मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ऑल्सो नोन एज सेल डॉक्ट्राइन। सेल डॉक्ट्राइन। तो यहां तक आपको समझने में कहीं कोई इशू नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये टॉपिक काफी बड़ी है, तो हम इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। तो मैं आपको लास्ट में 2 मिनट्स में केवल बता देता हूं कि विच टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस टॉपिक के बाद, सेल थ्योरी के बाद, वी विल कवर टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स, हम लोग अलग अलग टाइप्स के सेल्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के हिसाब से देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड वन इज multicellular। So on the basis of number there are 2 types of cell, and then again on the basis of nucleus, on the basis of nucleus, cells again are of 2 types. First one is known as prokaryotic and second one is known as eukaryotic। So friends, in our next video we will start from this point only। तो यहां तक हमने जो भी कवर किया है उसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। So friends, thank you so much again being with me। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, थैंक यू सो मच। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको बायोलॉजी के किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है। आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक
in the subsequent videos. Thank you once again. Have a lovely day.